Hello everyone, myself Raviraj Chauhan. In this video, we will see the concept of segmentation and a segmented paging. Now, before move ahead, let us understand why we need to study segmentation. A segmentation is a memory allocation technique using non-contiguous approach. Means we can store different segment at different locations in the physical memory. The another technique is a paging, simple paging. But as we know that, as we have seen in the previous videos, that the user point of view is not there in the paging. So to provide user point of view, user's viewpoint, we will study a concept of segmentation. So a memory management scheme which provides a user view of memory is called a segmentation. What is segment? A program is a collection of segment. Now segment can be a main program, different procedures, different functions, methods. आपने जो भी लिखा होगा, everything can be called as one segment. मेन प्रोग्राम होगा, अगर आपने अलग अलग मेथड्स बनाई है वो सारे अलग अलग सेगमेंट्स होंगे. आपके सिंबल टेबल, एरेज, all are called as different segments, and we can store different segments at different locations. Now what is the problem in paging? For example, the size of the main program is 1 MB and a page size is of 512 KB. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to divide main program into two part. Half portion will be in one page and remaining half portion will be in the another page, and that can be at different location. वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं. So it is difficult to visualize the whole program in the memory if you talk about paging. So we will use concept of segmentation. Let us understand what is segmentation. So this is the user view of program. So user को ऐसा दिखेगा, यूजर को ऐसा ही लगेगा कि ये एक मेन प्रोग्राम है, उसमें SQRT करके एक मेथड लिखी है, स्टैक में जो भी डेटा है, कोई भी सब रूटीन है, सिंबल टेबल्स है. दिस इज द यूजर व्यू ऑफ द प्रोग्राम, और दिस इज द मिसिंग इन पेजिंग, राइट? सो लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन इज user will look like this, user will see like this, and we can store, for example, segment 1 here, segment 4 here, segment 2 at different location, segment 3 at different location. So we will use the same non-contiguous approach only, but we'll store the whole segment. We will not divide the segment into different part. So that is the concept of segmentation. We will store particular segment continuously in the memory. For example, segment 3, ये segment 3 जो है वो हम एक साथ एक ही जगह पे स्टोर करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि 3 को आधा डिवाइड किया, यहाँ पे स्टोर किया, बाकी जगह पे जहाँ मेमोरी है वहाँ पे बाकी पोर्शन सेव किया. वी विल नॉट डू दैट, राइट? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिकल एड्रेस. सी, पेजिंग में हमने क्या किया था? लॉजिकल एड्रेस कंटेन्स टू थिंग, पेज नंबर एंड ऑफसेट. एट द सेम वे हियर पेज नंबर इज रिप्लेस्ड बाय सेगमेंट नंबर. पेज नंबर का मतलब क्या था? कौन से पेज में आपका डेटा अवेलेबल है. सेम वे कौन से सेगमेंट में आपका डेटा अवेलेबल है, दैट विल बी शोन बाय सेगमेंट नंबर. और वो डेटा, एक्चुअल डेटा कहाँ से फैच करना है फिजिकल मेमोरी से, फॉर दैट वी विल यूज ऑफसेट. सो rather than using page table, here in segmentation we will use a segment table. So segment table will convert your logical address into physical address. Now here segment table contains two things. One is base address and other one is the limit address. It's a two-dimensional physical address. So base address means it's a starting physical address where the segment reside in the memory. Base address का मतलब क्या है कि आपकी मेमोरी में कौन से सेगमेंट, आपका सेगमेंट कौन से स्टार्टिंग एड्रेस पे है, दैट विल बी शोन बाय बेस एड्रेस. वी विल सी द एग्जांपल. तो लिमिट एड्रेस में हमें क्या होगा कि वो सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी. स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल 1000 से स्टार्ट हुआ और उसकी लेंथ 500 है, तो 1000 से 1500 की रेंज में ये आपका सेगमेंट स्टोर होगा. सो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर विल पॉइंट, ये पॉइंटर है जो किसको पॉइंट करेगा? स्टार्टिंग लोकेशन को. और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर क्या बताएगा कि वो कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स यूजर प्रोग्राम में है, वो बताएगा कौन? सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर.
तो जो भी सेगमेंट नंबर है, फॉर एग्जांपल सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर का में 4 लिखा है, मतलब कितने सेगमेंट हो गए 4। अगर सेगमेंट नंबर 5 किसी ने रिक्वेस्ट किया तो वो यहाँ पे होगा नहीं, तो वही सेगमेंट नंबर लीगल होगा जिस जो लेस देन STLR हो। STLR मीन्स सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। सो apart from that, in segment table we can attach some protection bit, as we discussed in the video of structure of the page table. We can add few bits additionally in the page table or segment table, so that bit can be validation bit. Validation bit का मतलब है अगर वो 0 है तो वो segment है ही नहीं, और अगर 1 है तो वो सेगमेंट मेन मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट है। सी वी कैन, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का डिफरेंस हमें पता है। लॉजिकल एड्रेस मेमोरी ज़्यादा होती है, फिजिकल मेमोरी कम होती है। तो हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे सेगमेंट जरूरी नहीं कि आपके फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट हो। तो जो भी सेगमेंट प्रेजेंट होंगे उनका वैलिडेशन बिट 1 होगा, जो सेगमेंट नहीं होंगे उनका वैलिडेशन बिट 0 होगा। एट द सेम टाइम वी कैन ऐड रीड, राइट, एग्जीक्यूट प्रिविलेजेस। तो कौन से सेगमेंट को कौन से प्रिविलेजेस है वो भी हम यहाँ पे शो करना चाहे तो कर सकते हैं। सो प्रोटेक्शन बिट जो है, ये जो हमारे बिट्स जो है वो हर एक सेगमेंट के साथ होंगे, मतलब जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो हर एक सेगमेंट के साथ होंगे। और जो भी कोड शेयरिंग जो भी देना है वो सेगमेंट लेवल पे होगा। हम पार्ट पूरा सेगमेंट शेयर कर सकते हैं कि दिस सेगमेंट इज शेयर्ड विद दिस प्रोसेस। सो लेट अस सी द एग्जांपल in the diagram. So this kind of diagram is familiar to you. CPU क्या पास करेगा, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। तो सेगमेंट नंबर से क्या होगा, सेगमेंट नंबर यहाँ पे जाएगा और वो देखेगा कौन से नंबर का सेगमेंट उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल 3rd नंबर का सेगमेंट चाहिए तो उसका बेस एड्रेस देखेगा और उसका लिमिट एड्रेस देखेगा। बेस एड्रेस का मतलब क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस। लिमिट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितने तक जाएगा। अगर वो आपने जो ऑफसेट मांगा है, फॉर एग्जांपल लिमिट है 500, तो आपकी मैक्सिमम कितने कैपेसिटी होगी 500। अगर आपने यहाँ पे ऑफसेट जो मांगा है वो 500 से ज़्यादा है तो वो बता देगा कि एड्रेसिंग एरर। हम एग्जांपल देखेंगे कि हमने जो रिक्वेस्ट की वो आपके सेगमेंट में एड्रेस है ही नहीं तो वो एरर देगा। अगर सेगमेंट में एड्रेस है तो वो ऑफसेट प्लस आपका बेस एड्रेस, वो दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, फिजिकल एड्रेस। आपको समझ में आया? इस सेगमेंट नंबर जो है वो सेगमेंट में आपको मिलेगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस एंड लेंथ, लिमिट। अगर लिमिट आपने जो रिक्वेस्ट की, स्पेसिफिक डेटा जो रिक्वेस्ट किया ऑफसेट में, अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो आपको एरर मिलेगी। अगर वो लिमिट से कम है तो आप बेस एड्रेस में वो ऐड करके आपको एक्चुअल फिजिकल मेमोरी से एड्रेस मिल जाएगा। लेट्स सी एग्जांपल। ये लॉजिकल एड्रेस है। देखिए ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक सेगमेंट 0 है जो सब रूटीन है, सेगमेंट 3 में स्टैक स्टोर किया है, सेगमेंट 4 में सिंबल टेबल है, सेगमेंट 2 में मेन प्रोग्राम है और सेगमेंट 1 में SQRT मेथड है। तो यहाँ पे ये एक ध्यान में रखने वाली बात है कि बेस इस साइड है और लिमिट इस साइड है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सेगमेंट नंबर 0 कितनी एंट्री होगी, जितने भी सेगमेंट होंगे उतनी एंट्री होगी सेगमेंट टेबल में, ठीक है। और एंट्री में क्या होगा, 2 चीज, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर, दोनों की एड्रेस होंगे, ठीक है। सेगमेंट 0 कहाँ पे है, बेस 1400, तो 1400 से लिमिट क्या है 1000, तो 1400 से 2400 में सेगमेंट कौन सा स्टोर हुआ है, सेगमेंट 0। क्लियर? सेम है सेगमेंट 3। सेगमेंट 3 कहाँ से है, 3200 यहाँ पे है और उसका लिमिट क्या है 1100, मतलब 3200 में से 1100 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4300। तो ये होगा सेगमेंट 3। लाइकवाइज सेगमेंट 2, सेगमेंट 4, सेगमेंट 1 वो कहीं पे भी स्टोर होंगे, ठीक है। अब CPU जो भी एड्रेस पास करेगा यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल उसने पास किया सेगमेंट 3 और यहाँ पे पास किया 500, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं सेगमेंट 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे सेगमेंट 3 पे जाएगा। सेगमेंट 3 से उसको क्या मिलेगा, बेस एड्रेस 3200 पे जाएगा। अब उसका लिमिट जो है वो क्या है 1100 और यहाँ पे हमने क्या पास किया है सेगमेंट 3 एंड ऑफसेट कौन सा है 500, लिमिट है 1100 और आपने मांगा है 500, तो वैलिड है। तो यहाँ से वो ट्रैप नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। तो बेस एड्रेस है 3200, आपने 500 ऑफसेट दिया है तो वो यहाँ पे 3200 प्लस 500 यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे से 3700 नंबर के एड्रेस से आपको डेटा मिल जाएगा। क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल अब आप सेम पास कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट 1 एंड 600। अब सेगमेंट 1 का मतलब क्या है, उसका बेस एड्रेस देखेगा, सेगमेंट 1 से उसका बेस, सेगमेंट 1 यहाँ पे गया, उसका बेस एड्रेस देखा, लेकिन उसका लिमिट चेक किया कि लिमिट यहाँ पे 600 मांगा था और सेगमेंट 1 का लिमिट क्या है, देखिए 400 है। तो अब वो क्या दे देगा आपको, एड्रेसिंग एरर। आपको समझ में आ रहा है? सपोज आपको दिया है सेगमेंट 0 एंड 125 आपका ऑफसेट, तो सेगमेंट 0 कहाँ पे है, 400 1400 पे, 1400 में 125 ऐड करेंगे तो 1525 पे आपका डेटा होगा। तो फिजिकल एड्रेस कहाँ से मिलेगा, बेस प्लस लिमिट इज विल गिव यू द फिजिकल एड्रेस। ये दोनों डेटा आपको क्या देंगे, फिजिकल एड्रेस। लेकिन ये ऑफसेट की जरूरत हमें क्या है, हाँ, बेस प्लस नॉट लिमिट, बेस प्लस ऑफसेट विल गिव यू द आपको फिजिकल एड्रेस। लेकिन ऑफसेट हमें पहले से चेक करना है कि अगर ऑफसेट लिमिट से ज़्यादा है तो आपका एड्रेसिंग एरर होगा। ये एक एडिशन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेगमेंटेशन क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेगमेंट नंबर से यहाँ पे सेगमेंट नंबर मिलेगा, उसका बेस एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे जाएगा, और लिमिट हमें जो ऑफसेट है वो चेक करना है कि अगर लिमिट से ज़्यादा है तो हम एड्रेसिंग एरर देंगे, अगर लिमिट से कम है तो हम आगे जाएंगे बेस एड्रेस में वो ऑफसेट को ऐड करेंगे और हमें मिल जाएगा फिजिकल एड्रेस। डन। सो in this example you can check with using different examples. For segment number 4 and the offset is 300, or maybe segment number 6, सेगमेंट नंबर 6 अगर यहाँ पे आपके एड्रेस में प्रेजेंट है ही नहीं तो हम वो मिलेगा ही। सो इट्स दे विल गिव यू द एरर। फाइन। नाउ व्हाट आर द इश्यूज विथ सेगमेंटेशन? सो सेगमेंट की लेंथ जो है ना, देखिए यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट है, हर एक की लेंथ अलग अलग होगी। कोई यहाँ पे 1000 बाइट्स में है, कोई 400 है, कोई 1100 है। तो हर एक सेगमेंट की साइज अलग अलग होगी। मतलब we will use a dynamic storage allocation problem। जैसे हमने वेरिएबल पार्टीशनिंग में हम जो करते थे, द सेम कंसेप्ट वी हैव टू यूज हियर। सो इन दैट कंसेप्ट डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि हम जो सेगमेंट की साइज होगी उतने ही साइज का पार्टीशन हम क्रिएट करेंगे, तो इंटरनली मेमोरी लॉस होने के चांसेस नहीं है। हाँ, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग जगह पे अगर सेगमेंट करेंगे तो बीच में यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, ये आधी स्पेस, ये आधी स्पेस, दोनों मिला के टोटल स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। बट फिर भी हम इतनी बड़ी साइज का मेमोरी एलोकेशन हम नहीं कर पाएंगे अगर वो सेगमेंट इतना बड़ा होगा तो, बिकॉज वी विल नॉट डिवाइड अ सेगमेंट। सपोज यहाँ पे कितनी साइज है, देखिए 2400 से 3200, मतलब कितना है, कितना हुआ 800, और यहाँ पे 557 से 63, ये 600, मतलब टोटल 800 प्लस 600 स्पेस अवेलेबल है, 1400 स्पेस अवेलेबल है बाइट्स। फॉर एग्जांपल कोई सेगमेंट आया जिसको 1000 बाइट्स चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरा सेगमेंट साथ में रखना है। पेजिंग में पॉसिबल है, यहाँ पे पेज ये पेज में थोड़ा असाइन कर दिया, ये पेज में थोड़ा असाइन कर दिया, लेकिन सेगमेंटेशन हम पूरा करना है। इट्स अ नॉन कंटीजियस मेथड। सेगमेंटेशन नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मेथड है, बट सेगमेंट को एक साथ स्टोर करना है। नॉन कंटीजियस का मतलब है अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग लोकेशन पे, ये अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग लोकेशन पे आपने स्टोर किया, लेकिन एक सेगमेंट को डिवाइड नहीं करना है। सो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज दैट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी इंट्रोड्यूस पेजिंग इन सेगमेंटेशन। जो सेगमेंट आपने यूज किया उसमें भी आप क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हो, पेजिंग का कंसेप्ट यूज। तो पेजिंग सेगमेंटेशन में यूज करने की दो रीजन है। वन रीजन इज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब सेगमेंट को ही, अगर बड़ा सेगमेंट है, वो बड़े सेगमेंट को हमने डिवाइड कर लिया, वो 1000 वाला है तो 800 यहाँ पे और 200 यहाँ पे स्टोर कर लिया, तो अब पेजिंग इंट्रोड्यूस करने से हम अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं। सो one problem is that one reason is that we want to overcome the problem of external fragmentation, and the second problem is अगर सेगमेंट बहुत बड़ा है तो उसको कंटिन्यूसली अगर हम मेमोरी में स्टोर करेंगे तो स्पेस ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि पेज टेबल भी बड़ा हो जाता था तो हमें स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी।
तो सेगमेंट या फिर सेगमेंट टेबल बड़ा हो जाता है, देन वी विल टू रिड्यूस दैट वी विल यूज पेजिंग इनसाइड द सेगमेंट टेबल। सेगमेंट पे भी हम पेजिंग अप्लाई करेंगे, तो द होल सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पेजेस नाउ, right? So this concept is actually called as segmented paging architecture. So we will combine the concept of segmentation and paging. Segmentation से हमें क्या मिलेगा? यूजर्स व्यू मिलेगा कि यूजर को जैसा दिखना चाहिए ना वो बेटर रहेगा, और पेजिंग से हमें क्या मिलेगा? जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगा, और पेज टेबल या सेगमेंट टेबल की साइज, सेगमेंट की साइज अगर ज़्यादा होगी तो स्पेस ओवरहेड जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा इफ वी यूज सेगमेंटेड पेजिंग कंसेप्ट। सो the example, the Intel Pentium, we are using that. So it supports both segmentation as well as segmentation with paging. हर एक सेगमेंट की साइज मैक्सिमम हो सकती है 4 GB, अप टू 16 के सेगमेंट्स पर प्रोसेस। हर प्रोसेस में कितने सेगमेंट हो सकते हैं? 16 के सेगमेंट। कैन यू इमेजिन कि एक सेगमेंट की साइज 4 GB, और तो ऐसे कितने सेगमेंट? 16 के सेगमेंट। ये पॉसिबल है। सो हम जो सेगमेंट जो है ना, कि जितने सेगमेंट उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कि एक पार्टीशन जो होता है 8 के सेगमेंट्स हम स्पेशली वो प्रोसेस को ही देते हैं, इट्स अ प्राइवेट टू द प्रोसेस। और बाकी जो पार्टीशन है, बाकी 8 के सेगमेंट्स है, इट्स सैड अमंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। तो जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होगा उसमें क्या स्टोर होगा? जो प्रोसेस के प्राइवेट डेटा होंगे वो स्टोर होंगे 8 के सेगमेंट्स में। बाकी 8 के सेगमेंट्स के लिए इट्स सैड स्पेस, बाकी सारी प्रोसेस उसको सैड कर सकती है। तो सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा वो किसको पास ऑन होगा? देखिए, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, वो पहले सेगमेंटेशन में जाएगा, वो सेगमेंट कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है वो देगा, और वो आपको प्रोवाइड करेगा लीनियर एड्रेस। अब आप उस पर क्या अप्लाई करोगे? पेजिंग पे। और पेजिंग क्या जनरेट करेगा? आपको फिजिकल एड्रेस जो मेन मेमोरी में कौन से है वो वहां पे आपको वो कौन प्रोवाइड करेगा? पेजिंग। सिंपल सेगमेंटेशन। देखिए, मल्टी लेवल पेजिंग भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वी विल सी कि पेजिंग एक्चुअली किस तरह का काम करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। तो आपको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? पेजिंग का। पहले जो भी आपका एड्रेस होगा लॉजिकल, वो सेगमेंटेशन टेबल पे जाएगा। सेगमेंट टेबल में से आपको मिलेगा कौन सा सेगमेंट में है वो, वहां से आपको वो स्टार्टिंग लोकेशन एंडिंग लोकेशन मिल जाएगी। और वो स्टार्टिंग लोकेशन एंडिंग लोकेशन बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स में आप अप्लाई क्या करोगे? पेजिंग। और वो पेजिंग में आपका कौन सा फिजिकल एड्रेस है, वो मेन मेमोरी का कौन सा एड्रेस आपको एक्सेस करना है, वो जनरेट कौन करेगा? पेजिंग। और पेज साइज कैन बी 4 KB और 4 MB if you talk about Intel Pentium processor, right? So we are talking about 32-bit Intel Pentium processor. So CPU लॉजिकल एड्रेस पास करेगा सेगमेंटेशन यूनिट को, सेगमेंटेड यूनिट उसको कन्वर्ट करेगा लीनियर एड्रेस में, लीनियर एड्रेस पास करेगा पेजिंग यूनिट को, पेजिंग यूनिट जनरेट करेगा फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल मेमोरी में से वो एड्रेस का डेटा मिल जाएगा। सो पेज ऑफसेट, ये ऑफसेट है जो एक्चुअल डेटा देगा। ये पहले जो है वो सेगमेंट के लिए होगा, और दूसरा जो है वो दिस विल गिव यू द 2 लेवल पेजिंग। द पेजिंग इज यूज्ड 2 लेवल पेजिंग। सो पहले पेज आउटर पेज टेबल होगा 10 बिट्स का, और इनर पेज टेबल का एड्रेस होगा 10 बिट्स का। सो द लॉजिकल एड्रेस कैसे, पहले सेगमेंटेशन कैसे यूज होता है कि वो कौन सा सेगमेंट है दैट विल बी डिफाइंड बाय सिलेक्टर। तो सेगमेंट ये पूरा डिस्क्रिप्टर टेबल होगा, एक्चुअली नाम अलग दिया है, इट्स अ सेगमेंट टेबल। तो वो कौन से सेगमेंट में से वो सिलेक्ट होगा, उसमें वो ऑफसेट होगा, और आपको क्या मिलेगा? एक 32-बिट एड्रेस। और वो 32-बिट एड्रेस किसको जाएगा? पेजिंग को। और वो पेजिंग भी 2 लेवल में डिवाइड होगा। ये आउटर लेवल है, ये इनर लेवल है। इनर लेवल में क्या होगा? आपका पेज टेबल में एक्चुअली स्टोर होगा आपका कौन से पेज में है, फिजिकल मेमोरी में कौन से पेज में है वो एड्रेस स्टोर होगा। तो ये ऑफसेट 12 बिट का होगा, बाकी 10 बिट का होगा आपका पेज टेबल का एड्रेस, और बाकी बैच होगा आउटर पेज टेबल। मीन्स इसको नाम दिया है पेज डायरेक्टरी। अलग अलग पेजेस होंगे, कौन से पेज में है वो यहाँ पे पास ऑन करेगा, वो पेज टेबल में से कौन सा फ्रेम में स्टोर है वो यहाँ से पास ऑन करेगा, और वे फ्रेम नंबर और ऑफसेट मिलके आपको वो कौन सा पेज चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। सो दिस इज अ पेंटियम पेजिंग आर्किटेक्चर। सो segmentation plus
paging. So at the same way, the previous is the example of Intel, while in Linux they use fixed segments. हर एक segment का उन्होंने नाम दे दिया है, and they use uh, three level paging: global directory, the most outer page table; middle directory, the outer page table; then page table, the inner one, and this give you the offset. In Pentium we support two level paging, and in Linux we support three level paging: first, second, and third, and this give you the apps offset. So global directory will give you the entry of the middle directory will give you the entry of the page table, and page table will give you the exact page frame. The page is stored in which frame is given by the page table, and addition with that page frame number and offset will give you the physical address. So this is the example of two real life example. One is Pentium and other one is Linux. So thank you so much for the assignment. You need to, there is no assignment in this video. So thank you so much.